Assalamualaikum and very good morning to my lovely students. Welcome to the mathematics class 3. Here I already complete the chapter 1 where to look from, right? Now let's move toward the next lesson. Your next lesson is chapter 7, time goes on. This is your part 1 of this explanation, right? So in this lesson we learn about the time as the title, right? So let's start. In your textbook of this lesson, first page, you will see a topic of Ulta Pulta time. This is a story with Topsy and Turvy time, right? So here you can see this kind of picture in your textbook that in this ये जो पिंक कलर के वर्ड्स है वो थोड़े उल्टे पुल्टे टाइमिंग दिए, राइट? सो वी हैव टू राइट द प्रॉपर आंसर. दैट मीन्स वी हैव टू find out which would be the answer. Here blank is given, so instead of this what would be came that you have to mention. यानी इसकी जगह पे यहाँ पे ये गलत टाइमिंग दिया है तो यहाँ पे कौन सा राइट टाइम होगा या फिर कौन सा अप्रोप्रिएट राइट वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में फिलअप करना है. जैसे ही आप पेज नेक्स्ट पेज ये पेज टर्न करोगे तो आपको लाइक दिस काइंड ऑफ पिंक ब्लैंक बॉक्स दिखेगा, यानी ऐसा बॉक्स दिखेगा. यहाँ पे आपको क्या दिया है कि ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को आपको इनकी जगह पे यूज़ करना है, यानी इनको यूज़ करके ये ब्लैंक फिलअप करना है, राइट? सो फर्स्ट टाइम स्टार्ट दिस. एज द सन सेट्स डैश सुमाना वेक्स अप. सुमाना वेक्स अप यानी हम कब उठते हैं? सनसेट होता है तब. सनसेट मतलब इवनिंग टाइम, शाम को जब सन चला जाता है ना, तो वो टाइम. सो डेट टाइम वी आर वेकिंग अप? नो. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, यानी जब सन राइज होता है, राइट? सो इन दिस योर आंसर इज rises. So as the sun rises, Sumana wakes up, right? Then what a lovely evening, यानी sunrise होता है. So what would be evening? No, it would be morning. So what a lovely morning. Now she washes her face fast in 2 hours. Here given fast and then given 2 hours, यानी face wash करने में क्या 2 hours लगता है? How much time we are taking? See here the options are there. In this we can use minutes, right? We took 2 minutes, यानी हमें 2 minutes लगते हैं ना face wash करने के लिए, right? And runs out. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for last few months. यानी eggs को वो few months यानी कितने महीनों से eggs को not taken few months, right? So instead of few months we can use few days, यानी कुछ दिनों से वो सिर्फ notice कर रही थी, right? So answer is last few days, right? After that she was waiting for the baby birds to come out. But before she can blink her eyes in a week, blink her eyes यानी हमें eyes blink करने में how much time we are taking for blink our eyes? So it would be take week, यानी हमें week लगते हैं? No. Hours? No. Minutes? No. But we took seconds. Sorry, took a moment. So we took a moment. A cat jumps on the tree. The mother bird cries loudly. जैसे ही वो blink eyes उससे पहले क्या था, वो bird जो है वो cat वो bird के पास चले गए. So the mother bird cries loudly. Shumana rushes to shoo over the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango. राइट? सो जैसे ही उसने जंप किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक मैंगो हिट हो गई. सो डुम करके ऐसी आवाज आई. सो व्हाट वुड बी हैपन नेक्स्ट? लेट्स सी हियर. यू कैन सी द नेक्स्ट स्टोरी. ऐसे करके इसके ऊपर कैट, राइट? सो नाउ same options are there. You have to again fill the proper appropriate word in this blank. But first I am telling you which word we already used in the previous page. यानी आगे के पेज में जो जो word मैंने use कर लिए हैं that I will underline. So days मैंने already use किया है, then rises, then morning, moment already we use, and minutes. So these are the words which we already used in the previous page, right? आगे वाले पेज में हमने ये already use किए हैं. Now 3 blanks and 3 options are there. Now from that you have to fill this. So in 2 days dash it is on the ground. यानी जो cat को hit हुई mango, तो वो cat 2 दिन लगे उनको नीचे गिरने में from the tree. Is it true? No. So how much time? It took seconds. So in 2 seconds
इट इज ऑन द ग्राउंड, यानी कैट तो सेकेंड के अंदर ही नीचे आ गई. ओह हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नाउ नॉट फुल्ली राइप, यानी राइप यानी आप देख सकते हो कलर ऑफ मैंगो इज ग्रीन, यानी अभी तक वो पकी नहीं है, राइट. सो इट नीडेड 1 more year, यानी उसको पक्का होने में यानी राइप होने में 1 year लगेगा. इज इट ट्रू? नो, इट विल टुक हाउ many remaining? So second we already used. Now breakfast and now week. So what would be answer? Answer is week. So it needed 1 more week to become sweet, right? Suddenly Sumana's sisters call out, are you still not hungry? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot upma for dinner. Upma हम dinner में लेते हैं? No, we took as a breakfast, right? So understood this ulta pulta story, right? Okay, let's move toward the next. Next is how long does it take? यानी हमें देखने कि कौन कौन से एक्टिविटी को करने में हमें कितना टाइम लगता है. कभी आपने देखा है कोई स्वेटर निटिंग कर रहा है, या फिर पॉटर पॉट बना रहा है, या फिर कोई कपड़े सीने में कितना टाइम लगता है, राइट? या फिर आपको बात लेने में, या फिर चाय पीने में, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग. सो दैट वी हैव टू डिस्कस that here the things are given which take some are take activities given, some takes minutes, some takes hours, and some takes days. So already this is given in your textbook. A bath, to boil a milk, we take only minutes, we complete these activities in a minutes. So next is to listen a song. हमें song सुनने में कितना टाइम लगता है? We took minutes. Then to make a tea, चाय बनाने में. Then to get ready for school, school जाने के लिए ready होना है. So how much you are taking, hours or days? We took only minutes to get ready, right? Then to fill a water bottle, अगर हमें water bottle fill करना है पानी से तो हम कितना टाइम लेते हैं? We took only minutes to complete that activity, right? Let's next move towards the takes and hours. To stitch a shirt, to set curd a school name. These are the activity that takes hours to complete it, right? So next is to watch a movie. Movie देखने गए हो ना, right? So it takes an hours, right? Then to bake cookies, cookies बनाने में. Then go and come back from tuitions. आप ट्यूशन जाते हो ना तो कितना टाइम लगता है? It takes hours. Not we complete this in a minutes. Or not it takes the days also. हम hours में से complete कर सकते हैं, right? Next move toward the takes days. These are the activities that took days. So to knit a sweater, to weave a sari, from a banana to become a ripe. So in this it would be to write a book. कोई बुक लिखना हो, या फिर हम आपको कोई भी CW किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी बुक लिखने का बोले कि पूरी बुक कंप्लीट करनी है, या फिर सपोज आपको 10 पेजेस भी करने हैं, सो इट वुड बी टेक डेज, राइट? सो टू राइट अ बुक. देन फॉर अ लेटर टू गेट डिलीवर्ड, यानी लेटर होते हैं ना पोस्ट में. Then for a sunflower to grow from bud to fully sunflower, bud में से उसको पूरा sunflower बनने में it takes a days, right? So understood these are the activities, these are discussed कि जो कुछ activities है जो minutes में complete हो जाती है, कुछ hours में और कुछ days में, right? Your next topic is think of some other things, some are faster and some are slower, so make a long list. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ activities दिखा रही हूँ जो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, लाइक मीन्स इट टेक्स ओनली सेकेंड्स टू कंप्लीट इट. फर्स्ट इज टू ब्लिंक माई आइज, टू स्नैप माई फिंगर्स, टू गल्प मेडिसिन, यानी आपको आइज ब्लिंक करने में सेकेंड्स लगते हैं, फिंगर स्टैप करने में या फिर मेडिसिन लेने में. और फॉर द फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, फ्रूट में को ट्री पे से फॉल होने में, राइट? सो एनी गेसेस? यस. टू क्लोज द डोर, आपको डोर क्लोज करने में कितना टाइम लगता है? वी टुक अ सेकेंड्स. देन to say thank you to someone, किसी को से thank you बोलना है, so how much time you are taking? You takes a seconds. Thank you, like this, okay? Then next are the activities this takes months, like to grow wheat from seed to big plant, to change from summer to winter, यानी सीजन को चेंज करने में मंथ्स लगते हैं ना, राइट? 3 months take one season. For a baby to come out to its mother's stomach, मम्मी के स्टमक में से बेबी को कम आउट होने में it takes a months, 9 months, right? So like this one more example I added, that is to build a house, यानी हमें घर बनाने में लगता है ना महीने, right? We can take a more than months also, right? यानी years भी लग सकते हैं. So till then complete your all CWs. A week has dash days.
यानी एक वीक में कितने दिन होते हैं? चलो स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी को आता होगा, है ना? तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? यस, 7. सो अ वीक हैज 7 डेज, राइट? देन नेक्स्ट, अ ईयर हैज डैश मंथ्स, यानी एक साल में कितने मंथ होते हैं? ये भी तो बहुत इजी है। चलो 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 चलो, गैसेस कितने होते हैं? यस, 12 months. A year has 12 months, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? Then a month has dash days, only in February has dash days. So a month, पहले तो हमें मंथ में यानी महीने में कितने दिन होते हैं पता है आपको स्टूडेंट्स? कितने होते हैं? यस, 30 और 31. कुछ महीनों में 30 होता है और कुछ महीनों में 31 डेज होते हैं। वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन, आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको सेकंड स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन भी किया था, राइट? हमने कि कौन कौन से महीने में 30 और कौन से महीने में 31 डेज देते हैं। मैंने आपको क्लोज पाम क्लोज करके काउंटिंग करना भी सिखाया था कि अगर अप पे आए, अपवर्ड पार्ट पे काउंट करो, तो अगर अप पे आए तो यानी उस महीने में 31 है, और अगर इन बिटवीन, राइट, तो वो 30 डेज। एक्सप्लेन किया था मैंने, वो क्लोज पाम वाला आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? सो दैट आप ऐसे कर सकते हो। एंड देन ओनली इन फेब्रुअरी हैज डैश डेज, एक फेब्रुअरी ऐसा महीना है, आपको पता है फेब्रुअरी में कितने दिन होते हैं? यस, 28 और 29. सभी महीनों में जनरली 30 और 31 होते हैं, बट फेब्रुअरी में 28 और 29 डेज ही होते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एक बार कैलेंडर देख लेना, कैलेंडर में कि कौन कौन से महीने में कितने डेज होते हैं, राइट? Then a normal year has dash days, यानी पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days. And the leap year has dash days. लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 days. अब आप सोच रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीप ईयर, यानी लीप ईयर क्या है? नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? यानी पूरा साल में 365 दिन होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज। अब 366 कैसे? तो बट पहले क्वेश्चन आ रहा है कि लीप ईयर, यानी लीप ईयर का मीनिंग क्या है? सो लीप ईयर मीन्स अ ईयर दैट कंटेन्स 366 डेज। जैसे मैंने बताया कि लीप ईयर यानी ये साल में 366 डेज होते हैं, बट क्यों 366 डेज होते हैं? विथ February 29 एज एन एडिशनल डे, यानी मैंने आपको बताया था कि फेब्रुआरी में 28 और 29 डेज होते हैं। तो अगर जो एक साल में नॉर्मल ईयर में अगर फेब्रुआरी में 28 डेज, जो साल में फेब्रुआरी में 28 डेज होते हैं, वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है। बट अगर फेब्रुआरी में एक साल ऐसा है लाइक जिसमें फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं, तो वो साल को पूरा ईयर जो है, पूरे साल को हम लीप ईयर कहते हैं, राइट? और वो 4 इयर्स में एक बार ही आता है ये लीप ईयर, यानी फेब्रुआरी में 29 डेज 4 साल में एक बार आता है, 4 साल के बाद आता है, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद, राइट? सो जो साल में पूरा ईयर हो और उसमें फेब्रुआरी में 29 डेज हो, वो ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लीप ईयर, राइट? नॉर्मली हमारे पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। सो क्लियर दिस ऑल नोट्स? वीक में कितने दिन होते हैं, साल में कितने मंथ होते हैं, मंथ में कितने डेज होते हैं, फेब्रुआरी में क्या डिफरेंस है, राइट? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, समझ में आ गया ना? सारी नोट्स देख लो ध्यान से, और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट नोट्स से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डैश आवर्स इन अ डे, यानी पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? चलो बताओ कितने होते हैं, पता है आपको कितने होते हैं? हम बोलते हैं ना, यस, देयर इज 24 आवर्स इन अ डे, यानी पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास। पता है, आपने कभी काउंट किया? होता है ना, सुबह के 12, दोपहर के 12 बजे तक 12 आवर्स, देन टिल नाइट 12 o'clock, यानी 12 + 12 यानी 24 आवर्स इन अ डे। 1 hour इक्वल्स टू डैश मिनट्स। चलो अब बताओ, एक घंटे में कितने मिनट्स होती है? 1 hour में कितने मिनट्स होती है, पता है आपको? यस, कितने? 60 मिनट्स। एक मिनट के एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एंड 1 minute इक्वल्स टू डैश सेकेंड्स। तो अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स कैसे होते हैं? 60, राइट? अब मैं ये 60 मिनट्स और 60 सेकेंड, 1 hour, ये सब कुछ आपको क्लॉक के ऊपर अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये 1 hour में 60 मिनट्स कैसे हुए और 1 minute में 60 सेकेंड्स कैसे होते हैं। सो पूरे क्लॉक में आपको लाइव दिखा के एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। ओके, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा इसके बारे में।
देन हमें फुल फॉर्म देखना है AM। आपने वर्ड सुना है ना, कभी कभी हम आपको टाइमिंग लिखाते हैं कि 5:30 AM, 5:30 PM, 6 o'clock, 6:10 AM, 6:30 AM, राइट, ऐसा लिखा था ना AM PM। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AM? AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियन। यू हैव टू राइट डाउन दिस 5 टाइम्स, रफ बुक में 5 टाइम लिख के अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। देन PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन, राइट। सो फुल फॉर्म समझ में आ गया। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन एंड PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, राइट। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज टाइम। हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग AM और PM, यानी आपको AM और PM फिल इन द ब्लैंक्स पे फिल अप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि when we can use AM and when we can use PM, यानी हम किस चीज के लिए, कौन से टाइमिंग के लिए हम AM यूज करते हैं और कौन से टाइम के लिए हम PM यूज करते हैं। आपको पता है नहीं? सो लेट्स सी। 12 midnight to 12 noon, यानी रात के 12 बजे, रात के 12 बजे होते ना, रात के जब 12, तो तब से लेकर 12 noon यानी दोपहर के 12 बजे तक। तो रात के 12 बजे से टाइमिंग को लेकर सुबह के दोपहर के 12 बजे के टाइम को हम AM कंसीडर करेंगे, यानी इनके बीच में रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में जितना भी टाइमिंग है वो सब टाइमिंग के लिए हम AM यूज करेंगे, राइट। एंड 12 noon यानी दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर 12 midnight यानी रात के 12 बजे तक के टाइमिंग को हम PM कंसीडर करेंगे। क्लियर, समझ में आया? ध्यान से देख लो एक बार, वन मोर टाइम। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के टाइमिंग को हम क्या कंसीडर करेंगे? AM। और दोपहर के 12 बजे यानी नून यानी दोपहर, आफ्टरनून यानी दोपहर के 12 बजे से के बाद 12 midnight यानी रात के 12 बजे के टाइमिंग को हम PM कंसीडर करेंगे, यानी मॉर्निंग टाइम हम AM और आफ्टरनून वाले के जो भी टाइम है रात तक वो PM कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया? याद रखना, मॉर्निंग टाइम हम AM जनरली, राइट, एंड PM। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल। 8 o'clock at night, रात के 8 बजे, यानी midnight to 12 noon के बीच में हुआ नहीं, बट कहाँ भी होगा? दोपहर के बाद वाला 12 midnight से नजदीक यानी 8 o'clock। सो कौन सा आएगा? PM। सो योर आंसर इज PM, राइट। नेक्स्ट इज 5 o'clock in the morning। मॉर्निंग आया, मैंने बोला था ना मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? यस, AM, यानी रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह के दोपहर के 12 बजे के बीच का टाइम है ना। सो योर आंसर इज AM, राइट। देन द टाइम ऑफ द सनसेट, सनसेट कब होता है? इवनिंग के टाइम को, यानी शाम के टाइम को, राइट। तो शाम का टाइम यानी कौन सा होगा? ऑब्वियसली 12 noon के बाद वाला टाइम। सो आंसर इज PM। याद रखना, दोपहर के 12 बजे जो भी टाइमिंग होगा रात के 12 बजे से पहले हमें बीच में, तो हम उसको PM कंसिडर करेंगे। और रात के 12 बजे के बाद से लेकर सुबह के 12 आफ्टरनून के 12 बजे तक, राइट, AM, यानी मॉर्निंग टाइम हम जनरली AM, अदरवाइज PM। नेक्स्ट इज 2 o'clock in the morning, सुबह के 2 बजे। इजी? यस, मॉर्निंग है हम, यानी हम यूज करेंगे AM। सो क्लियर, PM एंड AM, कब हमें PM करना है, कब हमें AM करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो दिस इज योर ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99 पे आपको ये एक्टिविटी दी है जो आपको होमवर्क में करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, यानी आपकी एज अभी कितनी है, आपकी मम्मी की कितनी है, आपकी मम्मी की मम्मी, ये सब एज है, राइट। तो आपको वो आपकी पेरेंट्स की हेल्प लेके फिल अप करना है। सो दिस इज योर एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू विथ योर हेल्प। सो ये एक्टिविटी आपको होमवर्क करना है, हेल्प ले सकते हो आप अपने पेरेंट्स की, ठीक है। तो सो हियर यू कैन सी योर क्लॉक, तो ये आपका क्लॉक है, आप सबने देखा है ना आपके घर पे, राइट। सो ऑन दिस क्लॉक यू कैन सी द नंबर्स रिटर्न ऑन इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। सो ये क्लॉक में सबसे पहले मैं आपको ये नंबर्स दिखा दिए, अब मैं आपको सिखाऊंगी ये हैंड्स के बारे में, राइट। सो हियर यू कैन सी द स्लिम, ये पतला पतला सा दिख रहा है ना, सो आपको पता है ये कौन सा हैंड है, ये क्या शोज करता है? एनी गेसेस? इट शोज द सेकेंड्स, यानी कितने सेकेंड्स मूव हुई, राइट। देन आई एम शोइंग द अनदर हैंड विच इज अ लॉन्गर, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ लॉन्गर हैंड, और यू कैन से दिस लॉन्गर हैंड एज अ मिनट हैंड,
ये मिनट शोज करता है, सो यू कैन से इज एज अ मिनट हैंड. सो ये मिनट हैंड भी है एंड यू कैन से लॉन्गर हैंड. एंड दिस वन यू कैन सी दिस इज योर शॉर्टर हैंड. छोटा है ना, सो दिस इज योर शॉर्टर हैंड. सो यू कैन सी शॉर्टर और यू कैन से एन आवर हैंड. सो दिस इज योर मिनट हैंड, दिस इज योर एन आवर हैंड. और ये सेकेंड शोज करता है, तो यू कैन से सेकेंड हैंड, राइट. सेकेंड सिखाता है, दिखाता है. सो नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेट 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. हाउ इट इज़, सो लेट आई एम शोइंग यू दैट ये जो है, ये जो सेकेंड हैंड है, राइट. तो सेकेंड हैंड वाला जो है वो 12 से मूव करेगा. सो यू कैन सी, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकती हो, यहाँ पे एक नंबर्स लिखे हैं 65, यानी 12 के बाद 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये जो कोई भी हैंड्स है उनको एक नंबर पे से दूसरे नंबर पे जाने के लिए वो 5 टाइम्स मूव करता है. 1 2 3 4 5 लाइक दिस, एंड देन रीच टू द नेक्स्ट नंबर लाइक दिस. आप देख सकते हो यहाँ पे 5, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60. सो मैं अब आपको दिखाऊंगी, ये जो आपको दिख रहा है ना सेकेंड, तो ये जो सेकेंड वाला है वो पूरा ऐसे रोटेट करता है, तो कौन सा हैंड मूव करेगा. सो लेट आई शो यू लाइव. सो हियर यू कैन सी दिस सेकेंड हैंड इज मूविंग 2 3 4 एंड 5, यानी 5 टाइम्स मूव किया तब जाके वो 1 पे. आप देख सकते हो आगे भी जा रहा है, 2 पे गया, 3 पे. ऑब्जर्व द हैंड्स ऑल्सो, दिस मूवमेंट ऑल्सो, कि यहाँ पे मूव हो रहा है कि नहीं, कौन सा मूव कर रहा है. Now reach to the 4, that means 20 seconds हो गए. 25 seconds. Then reach to the 6, that means 30 seconds. Then 35 seconds as indicated over here. Then next 40 seconds. Then 45 seconds. Then next reach to the 10, that is 50 seconds. आप देख रहे हो ये एक हैंड मूव हुआ, you can see 55 and reach to the 60. As it is reached to the 60, आप देख सकते हो कि ये जो मैं हटा के आपको अगर दिखाऊं तो वो एक मूव हुआ, यानी यहाँ पे 60 पे था तो ये यहाँ पे मूव किया, राइट. डेट मीन्स ये जो पूरा उसको कितने टाइम्स लगे, उसको 60 सेकेंड्स लगे, तब जाके उसने 1 मूव किया, यानी ये 60 पे था एग्जैक्ट, फिर वो मूव करके यहाँ पे आ गया. ये नंबर ये दिख रहा है ना 1, वहाँ पे आपने देखा था ना, मैंने हटा के दिखाया आपको. सो अंडरस्टूड दैट 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती है, 60, राइट. नाउ आई एम शोइंग यू दैट हाउ 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर. सो नाउ दिस इज योर मिनट हैंड, राइट. तो ये मिनट हैंड को मैं विदाउट टचिंग दिस आवर हैंड, ये आवर हैंड को मैं टच नहीं करी हूँ. दिस आई एम मूविंग, सी इट इज मूव 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट. सो रीच टू द नंबर 1, यानी एक नंबर पे से दूसरे नंबर पे जाने के लिए इट टेक्स अ 5 मिनट्स, राइट. लाइक दिस इफ इट इज मूविंग टू द 2, सो 10 मिनट्स, देन 3, सो 15, देन 4, सो 20. ऑब्जर्व दिस, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है, दिखा ना आपको, 1 रीच हुआ, 2 पे गया, राइट. देन 20 से 25 आप देख सकते हो मूवमेंट, 25 से 30. सो जैसे ही 30 पे आ गया यू कैन सी द 12 और 1 के बीच में ये सेंटर में हो गया, यानी टोटल 60 होता है. 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता है ना. सो जैसे ही 30 पे पहुंचा, सो इट इज मूवमेंट, इट कम्स इन बिटवीन द नंबर्स, राइट. आप देख सकते हो. देन लेट्स मूव नेक्स्ट, 30 के बाद 35, देन 40, 45, देन 50, 55 एंड देन 60. सो जैसे ये 60 पे आया यू कैन सी इट रीच टू द नंबर 1, यानी 1 आवर कंप्लीटेड, यानी 1 घंटा हो गया. यानी कितना टाइम लगा, इट टेक्स 60 मिनट्स, 60 मिनट्स हुए, राइट. हमने देखा ना 5 मिनट्स 10 से पूरा. लेट आई एम शोइंग यू अनदर एग्जाम्पल, आई मीन नेक्स्ट देते हैं कि 2 पे रीच होता है 1 आवर के लिए हम, राइट. सो अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. सो 5 मिनट्स, 10 minutes, 15, 20, 25, 30, 35. जैसे देखो सी 30 पे आया, वैसे ही वो बिटवीन आ गया ना, बीच में आ गया दोनों के, राइट. देन
35, 40, 45, 50, 55 एंड 60. सो जैसे ही मैंने 60 पे मूव किया, यू कैन सी आवर हैंड गोज टू द नंबर 2. यानी कितने बज गए? 2 o'clock. सो अंडरस्टूड. यानी अगर 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? सो 60. समझ में आ गया हाउ इट कम्स 60, राइट? नाउ AM PM वाला भी एक्सप्लेन किया था. उसमें क्या होता है कि सपोज आपके रात के 12 बज गए, ये सपोज रात के 12 बजे है. सो रात के 12 बजने के बाद ये आप अगर 1 o'clock हुआ, देन 2 o'clock हुआ, 3 o'clock हुआ, 4 o'clock, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12. तो जैसे ही वो 12 बज जाएंगे, सो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे को हम AM कंसिडर करेंगे. इसके बीच में जितने भी आवर्स होंगे 1, 2, 3, 4, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ AM. एंड देन फिर दोपहर के 12 बजे के बाद वाला टाइम, यानी दोपहर के 1 बजा या फिर 2 बजे या फिर 3 बजे, 4, 5, 6 लाइक दिस. सो रात के 12 बजने तक, जब ये रात के 12 बज जाते ना, तब तक इट विल बी कंसिडर्ड एज अ PM. सो समझ में आ गया? AM PM ऑल्सो ऑन द क्लॉक. सो नाउ टिल देन कंप्लीट योर ऑल CWs. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.